آداب، میں ہوں محمد رفیع احمد۔ پہلے خاص خبریں۔ بھارت میں کووڈ کے لیے 2 ویکسین کے استعمال کو ملی منظوری۔ سیرم انسٹی ٹیوٹ اور بھارت بائیو ٹیک ویکسین کی تقسیم کے لیے تیار۔ عالمی صحت تنظیم نے کہا کووڈ کے خلاف جنگ میں بھارت نے کی ہے پیش قدمی۔ اندرون ملک ویکسین کی تیاری قابل فخر، وزیر اعظم مودی کا رد عمل۔ حیدرآباد بن گیا ہے ویکسین کی تیاری کا مرکز، کے ٹی آر کا تاثر، بھارت بائیو ٹیک کے سائنسدانوں کو دی مبارکباد۔ یادادری کے کاموں کا ریاستی وزیر پرشانت ریڈی نے لیا جائزہ، اس مہینے کے آخر تک کام مکمل کرنے عہدیداروں کو ہدایت۔ اور ملازمین، اساتذہ اور پینشنرز کے حقوق کے لیے چلائی جائے گی مہم، بی جے پی کے ریاستی صدر بنڈی سنجے کا اعلان۔ اب پیش تفصیل۔ بھارت میں کرونا وائرس کی روک تھام کے لیے 2 ٹیکے جلد ہی دستیاب ہوں گے۔ ڈرگ کنٹرولر جنرل آف انڈیا ڈی سی جی آئی نے کووڈ شیلڈ اور کوویکسین کے ہنگامی استعمال کے لیے منظوری دے دی ہے۔ حیدرآباد کی کمپنی بھارت بائیو ٹیک کے کوویکسین اور پونے کے سیرم انسٹی ٹیوٹ کے ٹیکے کووڈ شیلڈ کے استعمال کے لیے منظوری دے دی گئی ہے۔ ڈی سی جی آئی وی جی سومنی نے کہا کہ دونوں کمپنیز نے اپنے تجربات سے متعلق ضروری مواد فراہم کیا ہے اور دونوں کو محدود استعمال کی اجازت دی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹیکے 100% محفوظ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر کسی ٹیکے کے بارے میں معمولی خدشہ بھی ہو تو ہم ایسے کسی چیز کو منظوری نہیں دیتے۔ کووڈ شیلڈ نامی ٹیکہ آکسفورڈ اور ایسٹرازینکا نے مشترکہ طور پر بنایا ہے اور پونے کا سیرم انسٹی ٹیوٹ ملک میں اس ٹیکے کی پیداوار کرے گا۔ کوویکسین مکمل طور پر اندرون ملک تیار کیا گیا ہے۔ حیدرآباد کی کمپنی بھارت بائیو ٹیک نے انڈین کونسل آف میڈیکل ریسرچ اور نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف وائرولوجی کے تعاون سے ٹیکہ بنایا ہے۔ امریکہ کی فائزر کمپنی نے گزشتہ مہینے ڈی سی جی آئی کو اپنے ٹیکے کے استعمال کی اجازت کے لیے درخواست دی تھی، تاہم اس ادارے نے سیرم انسٹی ٹیوٹ اور بھارت بائیو ٹیک کی درخواستوں کو قبول کیا ہے۔ ڈی سی جی آئی نے کیڈیلا ہیلتھ کیئر کو ٹیکے کی تیاری کے لیے تیسرے مرحلے کی تجربات کی اجازت دے دی ہے۔ یہ کمپنی ملک میں 26,000 افراد پر اس ٹیکے کا تجربہ کرے گی۔ Bharat Biotech has developed a whole virion inactivated coronavirus vaccine named Covaxin in collaboration with ICMR and National Institute of Virology, Pune, from where they received the virus seed strains. This vaccine is developed on ViroCell platform, which has well-established track record of safety and efficacy in the country and globally. Phase 1. وزیر اعظم نریندر مودی نے ملک میں کرونا وائرس کے 2 ٹیکوں کے استعمال کے لیے دی گئی منظوری پر اپنی مسرت کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے ڈی سی جی آئی کی جانب سے کووڈ شیلڈ اور کوویکسین کو منظوری دیے جانے کے بعد اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس بات پر ہر ہندوستانی کو فخر ہوگا کہ دونوں ٹیکے بھارت میں تیار کیے گئے ہیں۔ وزیر اعظم نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہماری سائنٹیفک برادری آتم نربھر بھارت کے خواب کو پورا کرنے کے لیے تیار ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ڈی سی جی آئی کی جانب سے سیرم انسٹی ٹیوٹ اور بھارت بائیو ٹیک کے ٹیکوں کی منظوری ملک کو صحت مند اور کووڈ سے پاک بنانے کی سمت میں سفر میں تیزی لائے گی۔ انہوں نے سائنسدانوں اور محققین کو مبارکباد دی۔ وزیر اعظم نے ڈاکٹرز، طبی عملے، سائنسدانوں، پولیس ملازمین، صفائی کرمچاری اور تمام کرونا واریئرز سے اظہار تشکر کیا اور کہا کہ انہوں نے مشکل حالات میں غیر معمولی خدمات انجام دی ہیں۔ اسی دوران عالمی صحت تنظیم نے کہا کہ بھارت نے 2 ٹیکوں کو منظوری دیتے ہوئے کووڈ کے خلاف جنگ میں پیش قدمی کی ہے۔ تنظیم کے اعلیٰ عہدیدار نے بھارت کے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کل CSIR NPL کے 75ویں یوم تاسیس کے موقع پر مختلف پروجیکٹس قوم کے نام عنوان کریں گے۔ وہ نیشنل میٹرولوجی کانکلیو سے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے خطاب کریں گے۔ وزیر اعظم نیشنل ایٹامک ٹائم اسکیل اور بھارتیہ ندیشک درویہ قوم کے نام عنوان کریں گے اور نیشنل انوائرمنٹل اسٹینڈرڈز لیبارٹری کا سنگ بنیاد بھی رکھیں گے۔ اس موقع پر مرکزی وزیر ہرش وردھن بھی موجود رہیں گے۔ یہ پروگرام ملک میں CSIR کے مختلف لیبارٹریز میں راست دکھائے
दिखाया जाएगा। इनमें हैदराबाद का इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी भी शामिल है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की जानिब से हैदराबाद की कंपनी भारत बायोटेक के कोरोना वायरस टीके को वैक्सीन का हंगामी इस्तेमाल के लिए मंजूरी दी जाने पर रियासती वजीर के तारक रामा राव ने मसरत का इजहार किया है। उन्होंने कंपनी के एमडी कृष्णा एला और ज्वाइंट मैनेजिंग डायरेक्टर सुचित्रा एला और साइंसदानों को मुबारकबाद दी। केटीआर ने ट्विटर पर अपने पैगाम में कहा कि साइंसदानों और नई सोच रखने वाले सनतकारों की शानदार कारकर्दगी से हैदराबाद ने टीकों के दारुल हुकूमत के हिस्से से अपना मुकाम बनाया है। रियासती वज़ीर इमारत शुआरे विमला प्रशांत रेड्डी ने यादाद्री के तज़यीनों के कामों का आज एक आला सतही इजलास में जायजा लिया। उन्होंने अहदेदारों से मंदिर और इसके अतराफ अंजाम दिए जा रहे मुख्तलिफ कामों की तफसीलात हासिल की। उन्होंने अहदेदारों को हिदायत दी कि वो कामों की जल्द तकमील को यकीनी बनाएं। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर की हिदायत के मुताबिक मंदिर के अतराफ के इलाके को खूबसूरत बनाया जाए। उन्होंने जिला कलेक्टर अनीता रामचंद्रन को हिदायत दी कि वो यादाद्री रिंग रोड की तामीर के लिए अराजी का हुसूल इस महीने मुकम्मल कर लें। बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय ने ऐलान किया है कि इनकी पार्टी जल्द ही मुलाजिमीन, असातिज़ा और वजीफ़याबों के हुकूक के लिए तहरीक चलाएगी। उन्होंने मुलाजिमीन की तंजीमों के कायदीन से कहा कि वो चीफ मिनिस्टर के साथ हुई मुलाकात के बारे में तफसीलात सामने रखें। उन्होंने बीजेपी के दफ्तर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि असातिज़ा प्रमोशन न मिलने की वजह से शदीद मुश्किलात से दो चार हैं। बंडी संजय ने काकतीय यूनिवर्सिटी में ABVP के तलबा पर पुलिस लाठीचार्ज की मजम्मत की। उन्होंने कहा कि दर्जा फरीज ज़ातों के इस तलबा के लिए मोदी हुकूमत की जानिब से पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप की फराहमी खुशाइंद है। उन्होंने कहा कि इस इक़दाम से मुल्क भर में 4 करोड़ 80 तलबा मुस्तफ़ीद होंगे। निज़ामाबाद के MP अरविंद की मौजूदगी में ज़िले के कई कायदीन ने पार्टी में शमूलियत अख्तियार की। मरकजी हुकूमत ने मुख्तलिफ दस्तकारी सनतों में नई जान डालने के लिए इक़दाम किए हैं। मिट्टी के बर्तन बनाने की सनत इनमें से एक है। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन और छोटी सनतों की वजारत के जरिए कुम्हार सशक्तिकरण योजना पर अमल आवरी की जा रही है। इस स्कीम के तहत कुम्हारों को जदीद साजो सामान फराहम किए जा रहे हैं और इन्हें खुसूसी तरबियत भी दी जा रही है। मेदक जिले में इस स्कीम पर अमल आवरी के बारे में पेश है दूरदर्शन की ये खास रिपोर्ट। मेदक जिले के पापन्नापेट मंडल के अबुलापुर गांव में 20 जवान कुम्हार बरखी आलात पर मिट्टी के बर्तन बनाने की तरबियत हासिल कर रहे हैं। इस गांव के प्रभाकर ने कर्नाटक में खुसूसी तरबियत हासिल की और अपने अपने गांव में नौजवानों को तरबियत दे रहे हैं। ये लोग खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन की जानिब से फराहम किए गए जदीद साजो सामान का इस्तेमाल कर रहे हैं। बरखी के जरिए चलने वाले आलात का इस्तेमाल करते हुए ये कुम्हार मिट्टी के बर्तन, खिलौने और दीगर अशिया बना रहे हैं। प्रभाकर ने बताया कि उन्होंने कर्नाटक के खानापुर में छोटी सनतों की वजारत की जानिब से कायम किए गए खुसूसी तरबियती कैंप्स में ट्रेनिंग हासिल की। उन्होंने बताया कि स्टील और दीगर मादों से बनाए जाने वाले बर्तनों से सेहत को नुकसान पहुंचने का अंदेशा लगा रहता है। ग़िज़ाई अशिया के लिए मिट्टी के बर्तनों के इस्तेमाल से 100% प्रोटीन और विटामिन हासिल हो सकते हैं। नौजवानों को कहना है कि मरकजी हुकूमत की जानिब से फराहम की जा रही इमदाद से रोज़गार के मौक़े में इजाफा हुआ है। उन्होंने बताया कि प्रभाकर ने इन्हें इस फ़न को सीखने में मदद की। లేటెస్ట్గా అందరూ కూడా దీనిపైన ఆసక్తి చూపుతున్నారు. ఇప్పుడు మేము కూడా చదువుకున్న వాళ్ళు మీ పని చేసుడు అని చెప్పేసి అనుకోకుండా పాత పద్ధతులు మా ఇంట్లో అయితే ఏవైతున్నాయో దాని మీద ట్రెడిషనల్ సార్ల మీద చేయలేకపోతున్నాం. అయితే కేంద్ర ప్రభుత్వము ఈ వృత్తిని గుర్తించి దీనికి ఏ విధంగా అయితే చేస్తే బాగుంటుంది అనేది చర్చించి మా కోసమనే ప్రత్యేకంగా ఈ కుమ్మరి వాళ్లకు ఈ విద్యుత్ పాటరీ వీల్స్ అనేటి మరియు బ్లంజర్ మిషన్స్ ఆ మిషన్లో మట్టి వేసి వాటర్ వేసి స్విచ్ ఆన్ చేస్తే చాలు మాకు మొత్తం అది మట్టి మిక్స్ అయ్యి మొత్తం వడబోసిన మట్టి వస్తుంది. ఏ విధంగా మట్టి తయారు చేయాలి, పాత పద్ధతులు కాకుండా కొత్త పద్ధతుల ద్వారా అండ్ కరెంట్ సారీల పైన ఏ విధంగా పని చేయాలి అని ఉత్తమ శిక్షణ ఇవ్వడం జరుగుతున్నది. ఈ శిక్షణ కార్యక్రమంలో వాటర్ బాటిల్స్, జగ్గులు, దీపాలంకరణ వస్తువులు కాలానుగుణంగా మారుతున్న కొత్త డిజైన్ల రూపకల్పన చేసి ఆ విధంగా ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ ద్వారా ఈ పథకం कुम्हार सशक्तिकरण कार्यक्रम చేపట్టడం జరిగింది. KVIC की जानिब से दिए जाने वाले जदीद साजो सामान से मिट्टी के बर्तन बनाने का काम सीखने वालों की तादाद में इजाफा हो रहा है। इसके जरिए इन लोगों को आमदनी के हुसूल का मौका मिला है।
ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन न्यूज। महबूबनगर में नशा मुक्त भारत मुहिम के सिलसिले में मुनक्किदा कला जत्था का कलेक्टर एस वेंकटराव ने इफ्तिताह किया। ये प्रोग्राम महकूमा इत्तलात और तेलंगाना सांस्कृतिक सारथी ने मुश्तरका तौर पर मुनक्किद किया। इस मौके पर कलेक्टर ने शराब के अलावा तंबाकू नोशी के नुकसानात के बारे में अवाम में बेदारी पैदा करने की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हर शख्स की जिम्मेदारी है कि वो अवाम में बेदारी पैदा करें ताकि वो नशे की आदी न बने। नशा मुक्त भारत मुहिम के लिए तेलंगाना में 4 अजला चुने गए हैं, जिनमें महबूबनगर जिला भी शामिल है। तेलंगाना कानून साज कौंसिल की रुकन के कविता ने मरकजी वजीर स्मृति ईरानी से दरख्वास्त की है कि वो समाजी मुसल्लह सावित्री बाई फुले के एजाज में किसी यूनिवर्सिटी में चेयर कायम करें। सावित्री बाई फुले के 190वें यौम पैदाइश के मौके पर कविता ने मरकजी वजीर के नाम ट्विटर पर अपने पैगाम में दरख्वास्त की कि सावित्री बाई फुले का नाम उन मुमताज़ ख़वातीन के फहरिस्त में शामिल करें जिनके नाम से मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में चेयर्स कायम किए जा रहे हैं। कविता ने कहा कि जनवरी 2020 में स्मृति ईरानी ने 10 मुमताज़ ख़वातीन के नाम से चेयर कायम करने के ऐलान किया था, लेकिन इस फहरिस्त में मुल्क की पहली खातून मुसल्लह सावित्री बाई फुले का नाम शामिल नहीं था। उत्तर प्रदेश के मुरादनगर शहर में एक शमशान की छत मुनद्दम होने से 18 अफराद हलाक और दीगर कई जख्मी हो गए। ये लोग एक शख्स के आखिरी रसूमात में शिरकत के लिए आए हुए थे और बारिश से बचाव के लिए शमशान की छत के नीचे जमा हो गए थे। पुलिस ने बताया कि मलबे से 38 अफराद को बचा लिया गया है, जबकि मजीद चंद अफराद के फंसे होने का अंदेशा है। मुकामी ओहदेदार बचाव के काम में मसरूफ हैं। आखिर में खबर का खुलासा एक बार फिर। अब आप दूरदर्शन यादगिरी की खबरें सोशल मीडिया पर भी देख सकते हैं। यूट्यूब पर डीडी न्यूज़ तेलंगाना, ट्विटर पर डीडी न्यूज़ तेलंगाना @DD यादगिरी न्यूज़ और फेसबुक पर डीडी न्यूज़ तेलंगाना का मुशाहिदा किया जा सकता है। भारत में कोविड के लिए 2 वैक्सीन के इस्तेमाल को मिली मंजूरी। सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक वैक्सीन की तकसीम के लिए तैयार। आलमी सेहत तंजीम ने कहा कोविड के खिलाफ जंग में भारत ने की है पेशकदमी। अंदरून मुल्क वैक्सीन की तैयारी काबिल फख्र, वज़ीर आज़म मोदी का रद्द-ए-अमल। हैदराबाद बन गया है वैक्सीन की तैयारी का मरकज, KTR का तासुर, भारत बायोटेक के साइंसदानों को दी मुबारकबाद। यादादरी के कामों का रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी ने लिया जायजा, इस महीने के आखिर तक काम मुकम्मल करने ओहदेदारों को हिदायत। और मुलाजमीन, असातिज़ा और पेंशनर्स के हुकूक के लिए चलाई जाएगी मुहिम, बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय का ऐलान।